Around 70,000 international graduates there are reportedly facing the prospect of deportation due to new changes in the immigration policy. The Justin Trudeau government's decision to restrict study permit and decrease permanent residency nomination. डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ भाई। अभी चेंजेस आया है, पीएम ने अभी डायरेक्ट बोला जस्टिन ट्रूडो ने कि भाई ये चेंजेस हम लाने वाले हैं। 4 से 5 बड़े बड़े चेंजेस हैं और 90 दिन के अंदर ये अप्लाई हो जाएंगे। कुछ चेंजेस है जिनके ऊपर बात चल रही है कैपिंग की, वो ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ वर्क परमिट को रोकने के ऊपर है। कुछ यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जितने भी टेम्पररी रेजिडेंट्स है वो पीआर के लिए आ रखे हैं, उनके भी इशूज़ हो रहे हैं। पीआर वालों की गिनती कम होने वाली है। एंड इतने सारे रूल अभी कम बताए हैं, अभी 2-4 रूल हो रहे हैं। आई नो सारे पूछेंगे कि भाई 70,000 बच्चों का क्या होगा उनका जो डिपोर्ट होने वाले हैं। भाई चांसेस तो पूरे यही हैं उनके पास, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अब मेरे हिसाब से जो बचने के रास्ते होते हैं, मैं बताना नहीं चाहता, कभी मैं सपोर्ट भी नहीं करता, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज मिली हुई है तो बच्चे ये काम करते हैं, रिफ्यूजी का केस लगवाते हैं, अपना LMI लगवाते हैं, जो यहाँ पर 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर के अंदर मिल जाती है। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये काम करो। एंड प्लीज़ करना भी मत कभी भी। अपना यहाँ पर लीगल रहो, सेफ़ रहो। हर एक कंट्री का ना रूल होता है कि अगर 6% से ज़्यादा ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट गया तो उस कंट्री के अंदर रिसेशन आ जाता है। वहाँ की जितनी भी इकोनॉमिक है ना, वो स्टेबिलिटी जो चल रही है वो सब बिगड़ती रहती है। तो काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं उस कंट्री को। तो पर्टिकुलरली कनाडा के अंदर ये हो रहा है। इसका सारा इंपैक्ट इंडियंस पे तो जा रहा है, अपने इंडियन जितने स्टूडेंट्स आए उन पे जा रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जा रहा है, साथ साथ जितने यहाँ पर लोकल्स में कनेडियंस हैं उन पे जा रहा है। उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही। और ये बात ना भाई बिल्डिंग के अंदर गई है, लेजिस्लेटिव के अंदर, वहाँ बात हुई है कि भाई हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, हम इस कंट्री के हैं और हमें इतनी दिक्कत हो रही है, तो भाई ये क्या हो क्या रहा है, तुम प्लीज़ रोक लगाओ, कुछ करो। Can I ask you about the immigrant unemployment rate? We're looking at about 11.6% right now, which is substantially higher than the overall unemployment rate. You mentioned some changes to the TFW program, but are you considering broader changes, maybe limiting immigration, permanent residents, other streams to kind of restore some balance to the labor market? Because as it stands right now, a lot of newcomers are out of a job. These are ongoing conversations that we're having that we're taking extremely seriously. Obviously, over the past number of years, from the pandemic to the massive labor shortages immediately following the pandemic to the situation we're in now, we need to keep making sure we're responding to the needs both of Canadians, of businesses, and of the economy in general. And that's why we're constantly adjusting and making sure we're meeting the moment every step of the way. This fall, we'll be presenting for the first time an immigration's levels plan that doesn't just talk about permanent residents, but also talks about temporary residents, whether it's foreign workers or others. And we're making sure that the entire package makes as much sense as possible for the needs of Canadians and for the needs of our economy. That's why the first steps we're taking today of reducing the number of low-paid temporary foreign workers that can come work in this country is part of the response. Over the next 90 days, we'll be looking at the higher wage streams of temporary workers, and we'll be looking at unemployment rates and opportunities to make further adjustments over the course of this fall as we come forward with comprehensive level plans that'll respond to the reality that Canada is facing now. सबसे बड़ा झटका ना भाई उन्हें लगने वाला है जो यहाँ पर लो वेज फॉरेन वर्कर हैं। मतलब कि भाई कनाडा को ना इनकी नीड बहुत होती थी, बिकॉज ये नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, इनमें कोई स्किल नहीं है। जैसे कि ट्रक ड्राइवर हो गए ना, यहाँ पर ट्रकर हो गए, जिस पर Tier 4 और Tier 5 करवाते थे, LMI लेते थे। अब वो LMI ये बंद करने वाले हैं, तुम्हें कोई वर्क परमिट नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये रूल है, ये सामने लिखा आ रहा है। और जिन प्रोविंस के अंदर भाई 6% से ज़्यादा या 6% भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, तो वहाँ पर तो प्रॉपर बंद हो जाएगी, ये वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। तो ये भी बहुत बड़ा रूल है। ये छोटे छोटे रूल ना, आप समझ रहे हो ना, ये लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं एक तरीके से। अगर आप सारा थोरोली देखो ना, सारे रूल को कंबाइन करो, तो एक तरीके से ये घेरा बना लिया इन्होंने, फिर ये सेवा दे रहे हैं। तो यार मेक श्योर ध्यान रखना यार। मैं तो चाहता हूँ, अभी आपने मेरी पीछे से ना वीडियो देखी होगी, मैंने लिखा था ओनली 5 लाख पीपल गेट PR। उसके अंदर एक कोटा आया था कि भाई 2024 के अंदर इतने लोगों को PR मिलेगी, 4,85,000, 2025 के अंदर 5 लाख, 2026 के अंदर 5 लाख। एंड ये फॉलो करेंगे आगे तक। बट भाई अब इसको भी चेंज करने वाले हैं, ये इस पर भी बात चल रही है। मतलब ये बात हमेशा याद रखना, कोई चीज़ इन्होंने रूल निकाल दिया ना, तो वो कहीं स्टैंप नहीं है कि भाई पक्का रूल रहेगा। वो वाला रूल भी निकाला था, पर अब उस पर भी चेंजेस करने की बात चल रही है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर बढ़ रही है। ये तुम ये मत सोचना कि भाई अब यहाँ पर आके लाइफ सेट है। एंड यही सब चीज़ों की वजह से ना भाई बच्चे ना टाप रहे हैं। अब टापना आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर गेम बोलते हैं उसको ना, कि भाई इस कंट्री का बॉर्डर टाप के उस कंट्री में जाना। सच बताऊँ ना, बहुत सारे जने चले गए हैं एंड मुझे खबर आती रहती है। इवन दो मेरे आंखों सामने केस था, यहाँ से वो वहाँ चला गया। तो सच में, क्योंकि मेरे आसपास तो डकोता पड़ता है यहाँ पर ना, तो बॉर्डर टपाने के भाई 3 लाख रुपए लेते हैं, 3-4 लाख रुपए में गेम बना देते हैं। पर अगर पकड़े गए तो तुम्हारी वहाँ पर किस्मत ख़राब है,
किस्मत नहीं बोलो, तुम्हारी लाइफ ख़राब है, बिकॉज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। अब बच्चे सोचेंगे कि भाई हम तो अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ लाइफ सेट है। भाई वहाँ पर फिंगरप्रिंट होते हैं, उसके अंदर तुम पकड़े जाओगे। तो ये गलती तो भाई लाइफ में कभी मत करना कि तुम यहाँ कंट्री टाप के दूसरी कंट्री चले जाओगे, बिकॉज कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए होगा, यूके होगा, ये सारी कंट्री मिली होती है, इन सब की पार्टनरशिप होती है। जब तुम वहाँ पर केस लगवाओगे अपना कोई सा भी रिफ्यूजी का कुछ भी लगवाओगे, तुम्हारे फिंगरप्रिंट आएंगे, बायोमेट्रिक्स वहाँ पर स्कैन हो जाएंगे, एंड फिर आप फंसोगे कि वो पूछेंगे आपसे कि तुमने जिस कंट्री से तुमने यहाँ पर टाप के आए हो, मतलब कि कनाडा से तुम अमेरिका आए हो, तो तुमने कनाडा में क्यों लगाया है केस, तो वहाँ पर तुम फंस जाओगे। तो ये गलती मत करना, फिर ना तुम कनाडा के ना यूएसए के, फिर तुम अपनी इंडिया के होंगे। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना भाई। ये गेम जो होती है ना, उसको गेम ही रहने दो, तुम इसके अंदर इंक्लूड मत होना, तुम फंस जाओगे। एंड जैसे ये स्टेटमेंट आई ना कि भाई 70,000 बच्चों का कुछ भी नहीं होने वाला, कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाली है वर्क परमिट की, एक्सटेंशन की बात तो दूर की है भाई, अब तुम्हें वर्क परमिट भी नहीं मिलने वाला, ये रूल भी जल्दी आने वाला है, इसे लिख लो कहीं पर, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, अभी पब्लिकली पूरा बताया नहीं है, बट ये चीज़ होने वाली है। अब ये चाहते हैं कि भाई जो तुम लिखते हो ना एसओपी के अंदर कि भाई हम कनाडा को लीव करेंगे, तो अब तुम लीव करो, और तुम्हें ये नहीं शो करना कि भाई तुम्हें लीव करोगे नहीं करोगे, हम तुम्हें वर्क परमिट नहीं देंगे तो तुम्हें लीव करना ही पड़ेगा। जैसे यूके के अंदर होता है, वो कोई पक्का नहीं करता तुम्हें ना, यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। तो मेरा भाई बताता है ना मेरे को केसेस कि भाई किसी को 9 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, पक्का ही नहीं हो रहा वो। तो यही चीज़ अब जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लोकल्स को ना दिक्कत बहुत हो रही है। स्टडी परमिट पर इन्होंने भाई रोक लगा दी है, 35% से डिक्रीज़ कर दी है, जो पहले से कैपिंग चल रही थी। बट जो वर्क परमिट का रूल है वो रिसेंटली आया है, एंड वो सच में हिला देगा, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ एंड मुझे पता है कि आगे की लाइफ कैसे होने वाली है, कितनी डिफिकल्ट होने वाली है। मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ हेल्थ केयर से, पर मैं कोई अनोखा नहीं हूँ कि हेल्थ केयर से बिलोंग करता हूँ। आने पे कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो भाई अगर आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो यार, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो मेक श्योर थोड़ा डिसीजन वाइजली लेना। काफ़ी लोग मेरे से ये पूछेंगे कि भाई अब बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आना या नहीं, कुछ तो बताओ। तो भाई यहाँ पर आना बेस्ट अभी भी है, बट उनके लिए जो हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग से बिलोंग करते हैं, अगर इन फील्ड से बिलोंग करते हो तो तुम यहाँ पर आ जाओ। बाकी तुम बिजनेस से हो, कुछ भी हो भाई, हाथ जुड़वाओ मत, आओ बेफालतू के तुम पैसा लगा रहे हो माँ बाप का। ये बस छोटा सा मैसेज है मेरा आप सबके लिए कि यार लाइफ थोड़ी सी देख के चलना है यहाँ पर, बिकॉज पैसे जब लगाना ना, तो तुम ये भी सोचो कि तुम यहाँ पर आगे, मैं मानता कुछ भी नहीं हूँ, तुम कर्जा कुर्जा लेकर आगे नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे भरोगे, तुम खुद ने सोचा कभी? अगर इसको आप थोरोली सोचोगे ना कि यार नेक्स्ट ईयर की फीस मेरी 15 लाख बन रही है, 12 लाख बन रही है, मैं जोड़ूंगा कैसे? काम तो है ही नहीं यहाँ पर। अब कुछ ये भी कहेंगे कि यार कुछ बड़े आएंगे अनोखे अनोखे, यार काम तो बहुत है, तुम्हें नहीं मिल रहा। ब्रो मैं यहाँ पर घूमता हूँ ना, तो मुझे ही पता है। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो यार, सो सॉरी जिनकी जॉब नहीं लगवा पाया मैं, भाई अपनी तरफ से मैंने सारा करा यार, 4 बंदों की हेल्प करी है, जेन्युइन बंदे थे यार, वो सब्सक्राइबर ही थे मेरे। बात सब्सक्राइबर की भी नहीं थी, बात थी कि बंदों को कितनी नीड है, उस हिसाब से मैंने करा दिया। अगर मेरे हाथ में होता ना, तो जितनों के डीएम आए ना, सबका कराता मैं। कुछ तो मेरे को कहता है कि भाई मेरी क्लासेस थी यूनी के अंदर, तो इसलिए लेट हो गया यार मैं। कोई कहता कि कहीं चला गया था इसलिए मैं तुम्हारी वीडियो नहीं देख पाया। भाई यार पहली बार लाइफ में रिग्रेट हो रहा है कि इतना अच्छा खासा मौका मिला और सारी वीडियो देखता था टाइम पे, ऑन टाइम, बट ये वाली वीडियो मिस कर दी। मैं कहा यार अब भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर मैंने एक्सट्रीमली सॉरी फील करा हम सब के लिए। मेक श्योर यार रूल को समझा करो ना, लाइफ थोड़ी सी गलती से तुम्हारी ख़राब हो सकती है। चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बस जो रूल आए हैं समझो यार बात को, बाकी इतना ही था।